Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत करते A हैं very warm welcome from the heart of Christ Church. और हार्ट ऑफ क्राइस्ट कलीसिया की ओर से हम हर एक का स्वागत करते हैं। We believe that you've all been blessed in the last week. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब आशीषित हुए हैं ये पूरे हफ्ते। Hallelujah. हालेलुया। How many of us are excited to worship the Lord in truth and in कितने spirit? सारे लोग आज उत्साहित हैं परमेश्वर की आराधना करने आत्मा और सच्चाई से। Hallelujah. हालेलुया। Please do share this link with your families and friends so that even they would be blessed. अपने परिवारों के साथ इर्द-गिर्द मित्रों के साथ जरूर ये लिंक शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी आशीष पाए। And as a church, we thank you for joining us in the live stream. और धन्यवाद करते हैं कलीसिया होके कि आप हमारे संग इस सभा में मौजूद हैं। And we pray that we will all assemble together and have a wonderful fellowship in the near future as well. और आने वाले दिनों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग सब इकट्ठे एक ही जगह में हो जाए और परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah. हालेलुया। As we're going to begin this service, we're going to read from the book of James, chapter 1, beginning from verse 12 to 18. So we're going to read from the book of James. हम याकूब का किताब खोलेंगे, उसका पहला अध्याय 12 से लेकर पढ़ेंगे। Yeah, so as I'm going to read in English and then sister will read in Hindi. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desire and enticed. When the desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above and comes from the Father of light, and with whom there is no variation or shadow of turning. Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruits of his creation. Amen. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। Hallelujah. हालेलुया। Our God is so gracious, my हमारा dear brethren. परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। He is so gracious that he can even do anything for you and me. वो इतना अनुग्रहकारी है कि वो कुछ भी चीज हमारे लिए कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And let us not at any given point of time say that we have been tempted by God. और हम कभी ऐसे न कहें कि परमेश्वर ने हमें परीक्षा में लाया। Even if you see your friends who says this, please correct them. और अगर आपके मित्र भी ऐसे कहते हैं तो उनको जरूर बोलिए। Because many of the times, be it in college or even in school or even at workplace, we come to actually see people by saying these words that they've been tempted by God. और बहुत बार हमारे जो जगह में हम पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें परीक्षा में डाला। But when we read this word, it says that God can never be tempted. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर कभी परीक्षा में नहीं रखते। Hallelujah. It is only हालेलुया। from the devil who can be tempted. और हम केवल शैतान की ओर से परीक्षा में पढ़ सकते हैं। Let these words, as we read through, let it be imprinted in our hearts. और जो हमने अभी पढ़ा है वो हमारे हृदय में हम लिखे। God is so gracious, my dear हमारा brothers and परमेश्वर sisters. अनुग्रहकारी है। Hallelujah. हालेलुया। As we're going to begin the service, let us look up to the Lord in prayer
cast all our burdens, whatever we had been through all these weeks, and look up for Him, that He's going to give His new mercies in our lives. और ये पूरे हफ्ते का बोझ और जो कुछ भी चीज है हम साइड में रख के परमेश्वर की ओर देखेंगे ताकि परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। Hallelujah. हालेलुया। And even in the verse 17, as we read, it says, every good gift is a perfect gift is from above and comes down from the Father of light, with whom there is no variation or no shadow of turning. 17 में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा दान, उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। Hallelujah. हालेलुया। Are we worthy enough to receive those good gifts from the God? क्या हम योग्य है ये अच्छे वरदान प्राप्त करने के लिए? Just imagine we are receiving it from the God Almighty. क्या सोच कर देखिए महान परमेश्वर की ओर से हमें ये प्राप्त होता है। We should be privileged and trembling in receiving His word. और जैसे हम वचन को अपनाते हैं हमें सौभाग्य महसूस होना चाहिए और कांपते हुए पाना चाहिए। Not all the gifts are materialistic things. और सारी वरदान जो है वो केवल शारीरिक चीजें नहीं है। The gifts can be even through the word. और वचन द्वारा भी वरदान प्राप्त किया जा Because सकता the है। word will save us from the death of hellfire. और केवल वचन ही है जो हमें नरक से बचाता है। Hallelujah. Come on, church. Wherever we are, rise up onto our feet and look up to the Lord, that seek Him हम diligently. जहाँ कहीं भी रहेंगे हम उठकर परमेश्वर की ओर देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you, Jesus, for this new day you have given us. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। And we believe that you are going to bless us with new mercies. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप नए अनुग्रह से हमें भरने वाले हैं। Lord, let your name be glorified in and through our lives. हमारे जीवन द्वारा आपका नाम की महिमा होने दो। Let your name be honored and magnified. प्रभु आपका नाम को आदर मिले, महिमा मिले। Because your word says that your name is above every name. क्योंकि आपके वचन में लिखा है आपका नाम सब नाम से ऊंचा है। And there is no one besides you. और आपके बाजू में आपके सामना कोई नहीं कर सकता। Lord, as a church we come together in one body in Christ. प्रभु एक कलीसिया हो कि एक शरीर हो के आते हैं आप में। One intention is to serve you and to worship you. एक सोच के साथ कि आपकी आराधना करना है, आपकी सेवा करना है। Lord, we are not here to gain favor. We are not here to gain fame in this world. प्रभु इस दुनिया में हमें शौहरत, हमें नाम नहीं चाहिए। But we are here to serve you as हम living केवल sacrifices. एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु आपकी आराधना करना चाहते हैं। We commit and we submit each and every one into your precious हर एक hands, जन को Lord. आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। As the service is beginning, Father God, you will speak to us through your word. प्रभु जैसे आज की सभा शुरू होती है हम मांगते हैं कि आप वचन द्वारा हमसे बात कीजिए। And as we worship, let the heavenly kingdom rejoice. और जैसे हम आराधना करते हैं पूरा स्वर्ग खुशहाल होते। Thank you for the privilege, thank you for the grace, and thank you for the mercies in our lives. प्रभु आपके अनुग्रह और सारी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। We commit our church members into your precious hands. We commit our families. We commit all those who are watching us live, Father God. प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक जन को, हमारे परिवारों को और जो कोई ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। As we believe that this Sunday will be a new Sunday in their lives, Father और प्रभु God. विश्वास करते हैं कि ये रविवार हमारे जीवन के लिए एक नया रविवार बने And there will be good gifts from above. और हमारे जीवन में अच्छे वरदान प्राप्त हो जाए। And we receive it in the name of और Jesus. यीशु के नाम से हम उसको स्वीकारते हैं। Thank you once again for all the wonderful blessings you have done in our और सब lives. सारी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं And thank you प्रभु। for the things which you're going to do in our lives और as जो well. कुछ भी आप करने वाले हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते We हैं। love you, Lord, and we give you all the glory and honor. सारी आदर महिमा हम केवल आपको देते In the हैं। name of Jesus, we humbly pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं And we say aloud, Amen. और हम कहेंगे आमेन Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Are we all refreshed to worship the Lord? क्या हम उत्साहित है परमेश्वर की आराधना करने में? Because we have a very refreshing worship team who's going to refresh us by the word. क्योंकि उत्साहित आराधकों हमारे संग है जो हमें आराधना में चलाने वाले हैं। We also have a very dynamic pastor who's going to lead us in his word. और एक डायनामिक जो पासवान भी परमेश्वर ने हमें दिया है जो हमें वचन द्वारा चलाएंगे। So do not go away from your maybe your mobiles or
or your laptops, stay tuned so that you will hear His word, and the word, whatever is being preached, will be fulfilled in your lives as well. और जहाँ कहीं से आप ये देख रहे हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, यहाँ वहाँ न जाइए, लेकिन मगन होकर सुनिए ताकि परमेश्वर जो आशीष करने वाले हैं, आपको प्राप्त करे। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। आमीन। जैसे हम इकट्ठा आए हैं, जैसे हम स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर की, हम अपने आप को तैयार करेंगे उत्साह के साथ, ताली बजाते हुए, आवाज उठाते हुए परमेश्वर यीशु का नाम हम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। आइए साथ मिलकर आराधना, आराधना, मिलके करें हम
ताली बजा के परमेश्वर यीशु को हम धन्यवाद करेंगे, मिलके हम परमेश्वर यीशु की आराधना करेंगे। आमेन। क्योंकि जब हम मिलकर एक मन होकर एकजुट होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर प्रसन्न रहता है। Because the word of God says God is pleased in the praises of his people. जब परमेश्वर के लोग उनकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसमें विराजमान होता है। He's enthroned in the praises of his people. हालेलुया। आज भी जैसे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उत्साह के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि वो योग्य है, वो योग्य है हमारे जीवन में। He is worthy in our lives of all glory, honor and praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. There's no one like our God. हमारे परमेश्वर के समान कोई नहीं है। There's no one who can take his place. उनका जगह, उनका स्थान कोई भी कभी नहीं ले सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे हृदय में एक स्थान उनके लिए ही रखा है, जो कोई मनुष्य कभी भर नहीं सकता। और आज भी हम उनको उनके सिंहासन पर हम उनको आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, ऊंचा उठाएंगे, because he is a God for whom all things are possible. Hallelujah. Let's put our hands together. Let's praise the Lord Jesus and say, without him we can do nothing, and for him all things are possible.
समान। आइए मुंह खोल के कहेंगे, कोई नहीं है, मेरा प्रभु महान है। Let's open our mouth and say, our God is great, our God is strong, our God is high, and our God is a healer, our God has power. Hallelujah! हमारा परमेश्वर महान है, बलवंत है, ऊंचे है, चंगाई करने वाले हैं और सामर्थ्य है। हालेलुया! और यही आज हमने कबूल किया है। जब हम कबूल करते हैं, परमेश्वर जो है वो करेंगे। आइए मुंह खोल के कहेंगे, जो है वो करेंगे। उनको बनने की जरूरत नहीं है। एक मनुष्य को बनना पड़ता है कुछ करने के लिए, लेकिन हमारे परमेश्वर को बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है, जो है वो है। हालेलुया! हालेलुया! जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इतना महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये हमारी सौभाग्य बात है। आमेन, आमेन। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम जानेंगे कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुर्दों को भी वो जिंदा करता है, शेरों का मुंह बंद करता है। हालेलुया। अंधकार में वो रोशनी को चमकता है। It says even in the darkness he will be our light. हालेलुया। अय्यूब उसके दुख और तकलीफ में भी कहता है, in his darkness, उसके अंधकार में भी परमेश्वर उसका रोशनी बनेंगे। आमीन। आज भी अगर कुछ भी आप अंधकार में चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी हमारा परमेश्वर अपना रोशनी को हमारे ऊपर चमकेंगे। आमीन। कितना विश्वास करते हैं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि when the light of the Lord shines upon us, there is life inside of us and there will be a transformation also. परमेश्वर एक बदलावट को हमारे जीवन में लेकर आएगा। हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे और जानेंगे कौन है ये बड़ा परमेश्वर। Who is this big God whom we worship? Our God is great. उन्होंने बाइबल में लिखा है कि पानी को भी darkness में बदल दिया। This is our God. He turned even water into wine. हमारे जीवन की जो कमी है उसको भी पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। दुनिया के सामने, लोगों के सामने, विरोधियों के सामने भी परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस दिन खाना, उस जगह में, उस गांव में, जब उस घर में उस कमी थी, घटी थी, तो परमेश्वर ने उनको भी वहां आशीष किया, उनकी कमी को पूरा किया। हालेलुया। उनको शर्मिंदा नहीं किया। सही समय में परमेश्वर ने वो चमत्कार किया। हालेलुया। आज भी हम उसी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। Even today we serve and worship the same God. We serve and worship the same God. For him nothing is impossible. He can turn all things into good. सभी चीजों को वो भले में बदल सकते हैं। There's no one like our God. There's no one like our God. हमारा परमेश्वर के समान कोई नहीं है। हालेलुया। सभी कहेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि आपके समान कोई नहीं है। धन्यवाद यीशु कि आपके समान कोई नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There's no one like you. आप महान है, अनुग्रहकारी खुदा है, दयालु परमेश्वर है, प्रेमी पिता है। विलंब से तो क्रोध करते हैं, पर प्रभु आपकी आंखें हमेशा धर्मी जन के ऊपर है। आज भी प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसी कुछ भी चीज है उनके जीवन जो आपको पसंद नहीं, हम मांगते हैं आज भी आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। आपके पवित्र उपस्थिति में खड़े रहने के लिए हम हर एक को योग्य बनाइए प्रभु। आपको और जानने, आपके और करीब आने के लिए हम हर एक को मदद कीजिए। केवल आपके नाम की महिमा होने दें। तो ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आए, मसीहा को जान कर। तू ही है यहोवा शम्मा, प्रभु मेरे करीब है, वादा किया है मुझसे, तेरे साथ रहूं सदा। आइए परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपके आसन के पास जब हम आते हैं, हमें सब मिलता है प्रभु।
चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे हाथों को मैं थामूं, सहारा मिलता है। तेरी आँखों को मैं देखूं, तृप्त होता हूँ मैं। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। तेरे मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तू ही है यहोवा शालोम, प्रभु मेरी शांति, जो मेरी बंदी आई, मसीहा को जानकर। तू ही है यहोवा शम्मा, प्रभु मेरे करीब है। वादा किया है मुझसे, तेरे साथ रहूं सदा। तेरे हृदय को छू लूं, प्यार मिलता है। तेरे हाथों को मैं थामूं, सहारा मिलता है। तेरी आँखों को मैं देखूं, तृप्त होता हूँ मैं। तू ही है यहोवा रोही, प्रभु मेरा चरवाहा। हरी चराइयों में चराता, सुखदाई जल पिलाता। तू ही है यहोवा ईरे, प्रभु जो मुझे देता है जरूरत
आपसे बढ़कर हमारी दुनिया में, हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है प्रभु पिता। आपके आंखों में देखकर हम तृप्त हो जाते हैं, आपके हाथों को पकड़कर प्रभु हमें सहारा मिल जाता है। हम धन्यवाद कहते हैं कि जैसे आपका वचन कहता है प्रभु, ये दुनिया भी हमें छोड़े टुकराए, प्रभु कुछ भी करे, आपने वादा किया कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। आपने कहा देखो, तुम्हारे माँ में के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है, इस दुनिया से अलग किया है। धन्यवाद प्रभु कि आपकी आंखें हमारे ऊपर पहले से ही है, कि जब हम पापी ही थे आपने अपना जान हमारे लिए उस क्रूस पर दिया। अब यहोवा शालोम है जो हमें शांति देते हैं, अब यहोवा ईरे है, अब यहोवा निस्सी है, अब यहोवा परमेश्वर है जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके आसन के पास आते हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं, यही हमारा अच्छा भाग है। This is our rightful choice, Father. Your feet, Daddy. प्रभु आपका चरण हमारे लिए काफी है प्रभु। ये अच्छा भाग हम आज भी चुनना चाहते हैं, ये अच्छा भाग को कलिसिया होकर आज भी हम चुनना चाहते हैं प्रभु। आपके चरणों को हम चुनते हैं प्रभु, क्योंकि वही हमें आनंद मिलती है, वही हमें शांति मिलती है, वही हमें जीवन मिलता है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र सा, धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ माता तेरी बात जीऊंगा मैं तुझसे लिए। हालेलुया। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र सा, धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ माता तेरी बात जीऊंगा मैं बस तेरे लिए। हालेलुया। हम अपने आप को कबूल करेंगे, नम्र करेंगे, समर्पित करेंगे। Lord, you prepare us to be a sanctuary, holy and acceptable and pleasing in your sight, Daddy. प्रभु हमें पवित्र स्थान बना ताकि आप हमारे जीवन में विराजमान हो जाए, ताकि आपका सिंहासन हमारे जीवन में विराजमान हो जाए। Hallelujah. We want you to be enthroned in our lives, Father. We want you to be enthroned in everything that we do, Daddy. We want you to be King, Father. हम चाहते हैं कि आप ही वो राजा बने जो उस पवित्र स्थान में विराजमान हो जाए, जो प्रभु राज्य करे, जो हमें चलाए, हमें सही मार्ग पर चलाए। आज भी अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से जो भी शैतान का कार्य हमारे विरुद्ध में खड़ा है, जो हमें आपसे दूर करता है, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालते हैं। हम मानते हैं प्रभु आपको सिंहासन पर से कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि आप राजाओं का राजा है, प्रभु का भी प्रभु है। सब अधिकार, हर एक आदर, हर एक अधिकार आपके हाथ में है प्रभु पिता। आज भी हम मांगते हैं, you said all authority in heaven and on earth has been given to me. Daddy, we pray even today that by your authority you will be enthroned in our lives, Daddy, that no weapon formed against us shall prosper. प्रभु हम मांगते हैं कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध में खड़ा है, यीशु मसीह के नाम से उसको हम नाश करते हैं। आपने कहा, Father, you said that no weapon formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you, you shall condemn. This is the heritage of the saints of the Lord, and their righteousness is from me. आपने कहा ये हमारा हक है जो हम आपके बच्चे हैं प्रभु पिता, और आपने कहा कि हमारी धार्मिकता हमसे नहीं केवल आपसे आता है। आज भी यीशु मसीह के नाम से जो जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम मांगते हैं हर एक के
के जीवन में आप विराजमान हो जाए, हर एक के जीवन में आप अधिकार ले लीजिए प्रभु। हमारे हाथ में नहीं, पर आप हमारे अधिकार ले लीजिए। We don't want to hold the authority of our lives in our hands, Daddy. We give it to you today in the name of Jesus. हम आपके हाथों में देते हैं, आप हमें चलाइए, आप हमें चलाइए, आप विराजमान हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद कहते हैं प्रभु, धन्यवाद कहते हैं यीशु कलीसिया जहाँ कहीं भी है आवाज उठाकर कहिए, प्रभु आप विराजमान हो जाए। हमें धोकर शुद्ध कर, हमें तैयार कर आपके लिए प्रभु, आपकी सेवकाई करने, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमें तैयार कर प्रभु, हमारे पात्रों को तैयार कर प्रभु। Lord, prepare our vessels to hold your glory, Daddy. Prepare our vessels for glory's sake, Father. Hallelujah, धन्यवाद कहते हैं आवाज उठाकर। Thank you Jesus, thank you Daddy, thank you Father, thank you Lord। प्रभु हमें बना, एक पवित्र स्थान बना, एक पवित्र पात्र बना जो आपकी महिमा लाता है इस दुनिया में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी। कम ऑन, लेट्स लिफ्ट आवर वॉइसेस टुगेदर। लॉर्ड प्रिपेयर मी टू बी अ सैंक्चुअरी फॉर यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be your living sanctuary. For you alone, Lord Jesus। For you, प्रभु मुझको बना दो अपना पवित्र स्थान। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ माता तेरी बात जीऊंगा मैं बस तेरे लिए। प्रभु मुझको बना, प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ माता तेरी बात जीऊंगा मैं बस तेरे लिए। Hallelujah, thank you Jesus। Hallelujah, 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रभु मुझको एक अच्छा पवित्र स्थान बनाए प्रभु, धोकर हमें शुद्ध कीजिए यीशु। प्रभु मुझको बनाए, हाथों को उठा के, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ माता तेरी बात
धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें आपके लहू से धोकर आपके लहू से शुद्ध कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं केवल आपके लहू में वो सामर्थ है, आपके लहू में प्रभु वो सामर्थ है जो हमें शुद्ध कर सकता है, जो हमें धो सकता है हर पाप से, हर शराब से। और आज भी प्रभु हम नम्र होकर आपके भवन में जहाँ आए हैं, हम मांगते हैं प्रभु एक और बार हमारे सारे पापों को शुद्ध कीजिए। उस बहुमूल्य लहू को आज भी हम याद करते हैं प्रभु, जिसका कर्ज हम कभी नहीं चुका पा सकते हैं। यीशु क्षमा कीजिए, हर एक चीज जो आप में हमारे जीवन में जो नहीं है प्रभु, उसे निकाल दीजिए यीशु के नाम से। हर एक दिन हम आप में बढ़े प्रभु, हर एक दिन पहले के दिन से बढ़ के रहे प्रभु हमारे जीवन में। आज के सुंदर दिन में आपने आराधना करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करना काफी नहीं यीशु। जैसे वचन को भी सुनेंगे, हम मांगते हैं वचन हमसे बात करे, वचन हमसे बात करे यीशु। सुनने के लिए कान, समझने के लिए हृदय हर एक जन को मिले यीशु के नाम से, ताकि हम सुने समझे और सुनते ही उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हर एक को मदद कीजिए। हमें ऐसे व्यर्थ में ये समय न बिताए, लेकिन प्रभु भयभीत के साथ आपके चरणों में रहे यीशु। सारी स्तुति महिमा केवल आपको देते हैं। शैतान के हर बंधन को हमेशा के नाम से आपके लोगों से निकालते हैं और मांगते हैं हर एक जन प्रभु आज के दिन में एक नया जीवन पाए, आने वाले दिन में एक साक्षी बनाकर खड़ा कीजिए। आप ऐसे करेंगे, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारी स्तुति महिमा हम आपको देते हैं। पासवान को ढक के आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए। We give you all the glory, honor and praise, Lord. Take total control. यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च के लाइव सर्विस में करना चाहते हैं। जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में योग्य है। हालेलुया। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, ताकि जैसे हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर हमसे बात करेंगे। हालेलुया। जिसके पास कान हो वह सुने। ऑल दोज हु हैव ईयर्स, बाइबल सेज लेट देम हियर, वो सुने। आमेन। आज भी परमेश्वर हमें जैसे कान दिए हैं, तो हम प्रभु को कहेंगे प्रभु हमें सुनने वाला कान दीजिए, ताकि जैसे हम वचन सुनेंगे वो वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। आमेन। हालेलुया। और अपने आप को हम तैयार करते हैं। आपके बाइबल को लेकर आप तैयार हो जाइए, अब बैठ जाइए। एक as we worship the Lord, we believe the Lord's presence is in our midst. परमेश्वर आपके घरों में उनकी उपस्थिति है। वही उपस्थिति के साथ हम कहेंगे प्रभु मुझसे बात कीजिए, आपके पवित्र स्थान मेरे घर में आने दीजिए। हालेलुया। लेट्स बी एक्साइटेड टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। जैसे पासवान आकर हमारे बीच में वचन बांटेंगे, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमसे बात करेंगे। हालेलुया। हम पासवान का स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। I bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु ने और आपको और हमको मिलने के लिए प्रभु ने जो मौका जो दिया, उसको स्तुति आराधना करने के लिए जो प्रभु ने टाइम दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद And we'll देते give हैं। glory to the Lord. We'll thank Him that He gave us the opportunity to gather together and worship Him and praise Him. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करने वाले यीशु मसीह My beloved Jesus loves each and every one of you. और पवित्र आत्मा आपको साथ में लेके गया हो, And He has given us His Holy Spirit. और जो पिता परमेश्वर अपने एक ही लौटो पुत्र को आपको साथ में दे दिया And the Father has sent His only one and begotten Son for us. आप चिंता ना करना So है। therefore do not worry. हालेलुया। Hallelujah. हर पल आपको साथ रहने वाला प्रभु यीशु है। And Jesus is the one who dwells with you at all times. और ये जो आज जो परमेश्वर जो आपके साथ जो खुल्लम खुल्ला बात करना चाहता है, And even today the Lord wants to minister to you openly. बहुत जन बंदीगृह में फंस जाता है। And a lot of people are actually in different kinds of bondages. तो ये जो यहूदियों को पुराने नियम में भी जो लिखा है,
बंदीगृह के अंदर दूसरे देश में परमेश्वर ने उनको लेके गया था। And we see that even when we read in the Bible, the people of Israel were in slavery, they were in bondage. वो जन अभी आप समझ आपका जीवन में भी कभी बहुत ज्यादा चीजों के बारे में आप भी कुछ फंसाए होंगे। And many times you also in your personal lives, you might feel that you are in slavery or in some kind of a bondage. आज मेरा संदेश सुनने वाले मेरा भाई बहन बच्चों, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है। And even my beloved, even today as you hear this message today, God is going to do a mighty work in your life. आप विश्वास के साथ प्रार्थना में ये वचन सुनेंगे तो यही वचन के द्वारा आपको आज का छुटकारा मिलने And वाला if है। with prayer and with belief, if you hear the word of God, this word will deliver you today. ये जो बंदीगृह के बारे में बात किया तो मतलब समझ लीजिए कोई गुनाह किया तो उसको पकड़ के बंदीगृह के अंदर डालते हैं, मतलब जेल के अंदर डालते And when we speak about bondage, we speak about being in prison. When someone commits any kind of a crime, they are thrown into prison. जो कभी-कभी जो गलती किया तो भी उनको अंदर डालता है, कभी नहीं किया तो उनको भी पनिशमेंट मिलता है। And we see that people who are at fault, they are also thrown into prison. And at times, the others who have not done anything, also falsely being accused, they are also thrown आप into समझ prison. लीजिए आज जो संदेश जो है, कभी-कभी समझो आपने कुछ मिस्टेक नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आप किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ में चल रहा है, उनका कारण आप भी पनिशमेंट आपको भी मिल जाता है। Many times maybe you have not done anything against God, but the fellowship in which you are or the people you walk along with, because of them also you will be in bondage. वो कैसे भी समझ लीजिए जो किसके साथ चलना फिरता है और किसका आप जो साथ में जो कर रहा है उसके ऊपर ही आपका वो पनिशमेंट निर्णय हो And जाता है। a lot of judgment is passed based on who you sit and stand with and who you walk or fellowship along with. पुराने नियम में जो राजा जो यहूदियों का जो राजा था कि एरू जो गलती करके देश को नाश कर दिया है। And we see that the kings of Judah and Israel, because the kings committed sin, the nation suffered. और उनके कारण बहुत जन को बंदी में लेके गया था। And we see that because of that, a lot of people were captives. अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पहला जो था जो कैसा हो गया था, जो हिटलर ने जो दूसरे कंट्री के साथ मतलब जो लड़ाई करके बहुत जन को पकड़ के लेके गया था। And we know about the world wars which happened at that time. Hitler, what he did was he attacked the other nations and he took a lot of people as slaves and into captivity. इस तरफ से पुराने नियम में बहुत जगह हो गया था, मतलब अब्राहम के समय में भी वही हो गया है। And we see that even during the days of Abraham also it happened. और इसके बाद में दाऊद के जीवन में भी हो गया है। It happened in the times of David also. तो उसकी बाद में भी ये जो राजाओं के जीवन में जो शुरू हो गया उधर भी यही कंटिन्यू हो गया। And after David, all the kings also, when they were there were a lot of incidents wherein their people were taken into captivity. अब ये सब जगह में आप देखेंगे तो क्यों ये हो गया है? And when we meditate upon the reasons why they have been put into bondage or taken as slaves. आज के टाइम में आज के जीवन में भी जो प्रॉब्लम आ गया तो क्यों हो गया है? And when we face some various kinds of problems, what is the reason behind all of वो it? जन यही समझते हैं तो शैतान ने योग दे रहा है। And many a times we always put the blame on Satan, saying he is the one who is at fault. लेकिन शैतान को आप मौका क्यों दे रहा है? But what we do is we give him the chance, we give अगर him a आप मौका foothold. नहीं दिए तो आपको शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता है। And if we do not give him a foothold, then he cannot have any hold over us. ये और तो दूसरे चीज से कहां से फिर आता है? And where does all these things come from? हम ये पढ़ेंगे, देख लीजिए जो यिर्मयाह की किताब में यिर्मयाह 29 अध्याय में 14 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह chapter 29 verse 14। I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा
जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। आपको इसमें से क्या आपको समझ में आता है? And what do you understand by this? परमेश्वर में अनुमति दिया है, परमेश्वर ने तुमको वो जगह में लेके जाने के लिए काम किया And है। we read this and we understand that God was the one who permitted such things to happen. परमेश्वर दंड दे रहा है, And because of some reasons, God puts you into some kind of a punishment. जो उसी में से छुड़ाने की भी परमेश्वर ही कर सकता And the है। one who can deliver you from such captivities आप also फंस God गया है, himself. उसी में से बाहर आने के लिए परमेश्वर ही कुछ कर सकता If है। you're stuck somewhere, He's only the one who can deliver you also. अब फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए आपका कुछ लैपटॉप है, मोबाइल है, उसके अंदर आपने कुछ पासवर्ड डाल के कुछ लॉक करके जो रखता है, कभी कभी कोई भी उसको खोल नहीं सकता है। And many a times, suppose that you have put some password on your laptop or your mobiles, it so happens that the others are not able to open it. तो सिर्फ आप खोल सकता है। Only you can open because you know इसी it. तरफ से जो परमेश्वर ने जो आपके जीवन में जो कुछ कार्य किया, तो कुछ पनिशमेंट दिया, तो परमेश्वर ही आपको उसमें से बाहर छुड़ा सकता And है। if at all the Lord has permitted anything to happen in your life, He alone is the one who can deliver you from it जो also. परमेश्वर यही तो कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ लौट कर लाऊंगा, He's saying, I will gather you from all the nations क्योंकि again. मैंने तुम्हें भेजा है। Because I was the one who drove you away. तो ये जो आपको ये जो पिछले दिन से परमेश्वर ने आपके साथ जो बात किया है, जो डैनियल को लेके गया था, मतलब जो शाद्रक मेशक अबेदनेगो ये सबको उधर लेके गया था मिस्र देश में। And we also meditated many weeks back about Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, how they were taken as captives to Babylon. अब याद रखना है, अगर आप प्रॉब्लम में फंस गया, मतलब वो लोग किधर से यहूदियों से यहाँ से उधर बाबिलोन में उनको लेके गया है। And बाबिलोन we देश see में। that they were taken as captives from Judah to all the way to Babylon. बाबिलोन, और वो जो जगह में वो मतलब गुलाम बन के, मतलब जो सेल्स बन के उधर गया था, लेकिन जो जगह में गया उधर परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया। We see that they were taken as captives and slaves to the land of Babylon, but even in that particular place, God lifted them up. हालेलुया, Hallelujah. अब समझ लीजिए, जो मतलब जो गया हुआ है, जो जगह से तकलीफ उठाया था, लेकिन वो जगह से उनको ऊंचा कर दिया है। And we see that they were in suffering and pain, but in that particular same place, God lifted them up. कौन कर सकता है? Who can do this? कोई भी नहीं कर सकता This है। is not by man. दानियल ने कुछ भी नहीं किया अपने आप को। And Daniel did not do anything for तो himself. दानियल ने जो महाराज जो करता था, परमेश्वर ने उनके जीवन में ऊंचाई किया The है। God whom Daniel worshipped, he was the one who lifted him up. और जो यूसुफ का सामर्थ्य से कुछ भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उनके साथ में रहकर उनको विजय दे दिया। And even Joseph, we see that it was not by his own strength or capabilities, but it was God who lifted him up. तो इससे कारण आज मेरे प्रिय परमेश्वर को विश्वास करो। Therefore, my beloved, believe in the Lord. जो भी आपके जीवन में जो बंदी में जो हो गया, जो भी चीज है, समझ लीजिए आपका फैमिली लाइफ भी कभी कभी इस तरह फंसाए होंगे। Maybe you are in some kind of a bondage, maybe in your family also. वो जन दूसरे जगह में शादी करके जा रहा है, वो जगह में नया फैमिली के साथ में जाके जो जाने के टाइम एकदम खुशी से चला गया, लेकिन उनके जीवन में बहुत जगह में प्रॉब्लम में फंस गया है। There are many people who go very joyfully after getting married to the other house, and then in that new place they are stuck or they are in some kind of a bondage. समझ लीजिए कोई एक जगह छोड़ के दूसरे जगह में जॉब के लिए जा रहा है, Many people travel or they change locations for the job purpose also. लेकिन वो जो जगह में जाके जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स वाज हैपनिंग इन देयर लाइफ ऑन दैट प्लेस, हमने कि उनके जगह में जो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे होगा, वैसे चीजें भी कुछ बार उनके जीवन में घटती है। आप समझो जो जॉब इधर कोई जॉब मिला है, ये जॉब को छोड़ के दूसरे जगह में कोई जा रहा है, लेकिन सोचता अच्छा है, लेकिन जो जगह में सिचुएशन चेंज होता है। And they go with good expectations, changing locations from one place to another, but many times the situations change over there. कोई जगह में फंस गया तो वापस आ नहीं सकता है। And they are stuck in some places wherein they cannot return back. आप तो मालूम तो होगा, कोई अरब कंट्री में भी कोई जॉब के लिए जाता है, और कोई जगह में मतलब 2 साल 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाता है, लेकिन वो कभी उसके अंदर से बाहर कभी आता नहीं है। And we see that you might be aware of some people who used to migrate to the Arab countries for work. They used to take some contract for 4-5 years, but then they are never able to come back or और इस return. तरह से बहुत जन को परिवार से जो कोई घर के लिए लेके जा रहा है काम करने के लिए, मतलब जो खेती में कोई फार्म हाउस में किधर भी कोई दूर जगह में लेके जाता है,
उनको जिंदगी मतलब उनको परिवार उधर ही दे जाता है, गुलामी बन के, लेकिन उनको बाहर आने की मौका नहीं And there are होता। many other people who are taken as slaves, maybe to the far off fields, wherein they are not able to return back to a normal life, but they continue living there and they settle there, and their life is just spent in the same लेकिन thing. आज परमेश्वर तुम्हारे से बात करता है, हर जगह से परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएंगे। But the Lord says and ministers to you to this day that He will deliver you from everything. अपने माता पिता जो पाप किया होंगे, गलती किया होंगे, उनके कारण जो तुम्हारे जीवन में जो आया श्राप है, उसके भी परमेश्वर छोड़ देंगे। If at all because of the sins of your parents, if at all there's a curse over your life also, even from that particular curse, God can deliver you. हालेलुया। Hallelujah. हम वचन में पढ़ेंगे, 20 का वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह chapter 29 verse 20। Therefore, hear the word of the Lord, all you of the captivity, whom I have sent from Jerusalem to Babylon. इसलिए हे सारे बंदियों जिन्हें मैंने यरूशलेम से बेबीलोन को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। सबसे पहले तुम्हें फंस गया है, तुम्हें गुलामी बन गया है, तुम्हारे जीवन में गलती हो चुका है, अभी तुम प्रॉब्लम में फंस गया है। Now already you feel that you are in captivity, in bondage, you're already stuck and there's no way out. तुम बंदी हो गया है। You're already into captivity. अभी क्या करना है? And what is the next step? परमेश्वर तुम्हारे लिए योजना रखा है। But God has a plan still for you. परमेश्वर बोल रहा मेरा बात सुन लो सबसे पहले। He says first, hear the word of God. अगर परमेश्वर का बात सुनने से परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएंगे। When you hear the word of God, that's when God can deliver you. ये जो इसमें जो लिखा है, 2-3 चीज का बारे में परमेश्वर जो बात कर रहा है, सबसे पहले हम जो कर रहा है गलती की वजह से परमेश्वर इसे दंड देता है। Many a times because of our own shortcomings, we suffer some kind of a punishment. घर का जो मतलब जो माता पिता जो गलती कर रहा है उसका कारण बच्चों को भी Many a times because of the parents' sins, also the children are also accursed. आज एक नया चीज के बारे में परमेश्वर जो बात करता है वो आपको आश्चर्य होगा। And even today the Lord will speak to us something that is amazing. जो झूठा भविष्यवाणी के द्वारा तुम्हारे जीवन में भी गलती होता है। And many a times because of false prophecies also you are led astray. कोई झूठा भविष्यवक्ता ने झूठी मतलब जो परमेश्वर ने कह दिया करके बोल के आपको गलत रास्ते में लेके जाता है, उसके कारण भी आप भी बच जाते हैं, वो भी बच जाता है। And many a times there are false prophets who go around prophesying falsely, saying it is the word of God when it is not the word of God, and you also get stuck, and surely they are also stuck. हम वचन में पढ़ेंगे verse 21 से लेके 22 पढ़ेंगे। Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, concerning Ahab the son of Koliah, and Zedekiah the son of Messiah, who prophesy a lie to you in my name. Behold, I will deliver them into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and he will slay them before your eyes. कोलाया का पुत्र अहाब और मासेया का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। ये क्या बता रहा है? परमेश्वर के नाम से वो बात कर रहा है, झूठी भविष्यवाणी And कर they रहा are है। prophesying falsely in the name of the Lord. हाँ, परमेश्वर के नाम से, मसीह के नाम से आज गलत प्रचार बहुत जन करते And हैं। there are a lot of people preaching falsely in the name of the Lord. जो सामने वाले की किस तरह जो पसंद चाहिए उसी अनुसार वो प्रीचिंग करता है। And they start ministering in a way wherein the people who listen, they must like it, or what they like, they preach. लेकिन वचन जो कहता है जो सच्चाई क्या है तुमको जानना बहुत जरूरी है। But the word of God says you must know the truth. आप ये समझ लीजिए जो ये झूठी जो भविष्य वक्ता ने क्या किया है, झूठ बोल के सबको फंसा दिया, सब जन उनके ऊपर विश्वास किया। And we see that these two men were actually prophesying falsely to the people, and they were actually misleading the people. करें, कंटिन्यू करें। मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सुनो, मैं उनको बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। सबसे पहले किसको मार डालता है? जो झूठा भविष्यवक्ता को। And God is saying He will slay the false men, false prophets. क्यों परमेश्वर उसको करता है? क्योंकि परमेश्वर के नाम से वो कहते हैं। Why is God slaying them? The reason being that they
they prophesied falsely in the name of the Lord. आज वो जगह में यही हो रहा है। आप जो विश्वासी है तो आप ये समझना है आप किसके साथ जुड़ा हुआ है And if you are a believer, you must know who are you connected with और परमेश्वर को क्या पसंद है and what is pleasing to God. और जो जगह में पवित्र आत्मा वो जगह में है कि नहीं आपको देखना And जरूरी you है मस्ट नो if it is by the Spirit of the Lord in that particular place. क्योंकि जो शैतान में जो आत्मा वो भी पवित्र भक्त के माप में पवित्र आत्मा के माप में बात करेंगे Because even Satan, what he does is he speaks falsely just as if it is the word of अब ये God. देख लीजिए दो ये व्यक्तियों ने उनके सामने झूठा कहानी बता दिया और सब जन विश्वास किया है And we see that these two men went and prophesied falsely in the name of the Lord, and people believed them. और उनको दंड देने वाला वो मतलब तुम सबके सामने परमेश्वर उनको मतलब उनको खत्म कर दिया करके दिखाया And God is saying that in front of your eyes, in front of all the people, God will slay them. तुम मतलब इसके भरोसे के तुम भी फंस जाते हैं And when you are trusting in such people, you will also be stuck. इसीलिए बहुत जरूरी है वचन को सुनना है पढ़ना है उसको समझना है उसके बारे में याद करने की बहुत आवश्यकता है And therefore, it's very necessary for you to hear the word of God, understand the word of God, and dwell in the word of God. हालेलुया Hallelujah. अब दूसरे वचन में ये देख लेंगे चैप्टर या यिर्मयाह के परमेश्वर ने जो बता रहा था वर्स 31 पढ़ेंगे अभी तुमने फंस गया समझो तुम्हारे जीवन में कुछ गलती हो गया जो भी व्हाटएवर मे बी जो भी रीजन में आप फंस गया है वो उसमें से कैसा बाहर आने के लिए If at परमेश्वर all you are already stuck, you are in bondage, in captivity, you feel that there's no way out, what the Lord ministers to you, we'll read. Send to all those in captivity, saying, Thus says the Lord concerning Shemaiah the Nahelmite, because Shemaiah has prophesied to you, and I have not sent him, and he has caused you to trust in a lie. और बस चैप्टर 30 वर्स 3 पढ़ेंगे For behold, the days are coming, says the Lord, that I will bring back from captivity my people Israel and Judah, says the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. यहोवा नेहमिया शमाया के विषय में यूं कहता है, शमाया ने मेरे बिना बेजित तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यूं कहता है, सुनो, मैं उस नेहमालामी शमाया और उसके वंश को दंड देने पर हूँ, उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा। मतलब वो जो भविष्यवक्ता की दंड दे दिया है और अभी जो कर रहा है तुम कैसे छुड़ाएंगे चैप्टर 30 वर्स 3 क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपने इजराइली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और जो देश मैंने उनको उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा की यही वचन है। हालेलुया Hallelujah. देखिए परमेश्वर तुम्हें कैसा भी छुड़ाएंगे The Lord will make a way to bring you out of captivity. जो दूसरा जहां में मतलब फैमिली लाइफ में भी फंस गया तो भी परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएंगे If you feel you are stuck also in your family life, God will deliver you. वो जन गर्ज में फंसा हुआ है A lot of people are in bondage of debts. उसमें भी परमेश्वर छुड़ाएंगे God can deliver you from it also. और तुम्हारे जो फैमिली में कुछ शांति नहीं है तो भी परमेश्वर तुम्हें If छुड़ाएंगे at all there is no peace in your house, even there God will deliver you. अब ये समझ लीजिए जो बंदीगृह में मतलब तो दूसरे जगह में अब फंसने के बाद क्या करना पड़ेगा And after you are in captivity, you feel you are already stuck in some kind of a bondage. What is your next step? अभी समझ लीजिए बहुत जन दूसरे जगह में शादी करके दूसरे प्लेस में जा रहा है दूसरे परिवार के साथ जोड़ने के बाद उनके जीवन में काफी प्रॉब्लम आ गया तो क्या करना पड़ेगा And many people, they get married, they are joined along with another family, and many times they are treated in a wrong way or they are stuck somewhere. और आपको क्या करना पड़ेगा जो फैमिली में जो गया हुआ है वो फैमिली के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा What you must do is you must start praying for the people of that family. or that हालेलुया house. अब Hallelujah. समझ लीजिए जो ये परमेश्वर का वादा है जो जगह में तुम फंस गया है वो देश के लिए जो घर के लिए जो काम के लिए जो प्लेस में आप फंसा हुआ है वो उसके लिए प्रार्थना करने की बता And the रहा है Lord says that wherever you are stuck in captivity, you feel that you are in some kind of bondage, even in that particular place, you start praying.
अगर आप वही जगह में फंसा हुआ जगह में प्रार्थना करने से सबसे पहले परमेश्वर दो सिचुएशन को बदलेगा। The first thing that God does after you pray in that particular bondage is God will change your situation. हालेलुया। Hallelujah. हम जो इसमें देख लेंगे चैप्टर 29 वर्स 7। And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it, for in its peace you will have peace. परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के बेच दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हालेलुया। Hallelujah. अभी जो जगह आप फंस गए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जो जगह के लिए, जो परिवार के लिए, जो फैमिली के लिए, जो जॉब के लिए, जो ऑफिस के लिए, उसके लिए आप प्रार्थना करो। And wherever you are stuck, you feel in some bondage or captivity, what God wants you to do is start praying in that particular place, be it your job, be it your family, be it any situation where you are stuck. आमीन। Amen. तो सबसे पहले आप इस तरफ आज से शुरू करो। So start praying in your captivity. जो फैमिली लाइफ में जो होने के बाद उधर झगड़ा मत करो And after you're married, don't go around fighting, और आपको प्रार्थना में लगाते रहो, परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनेंगे and be continually in prayer, and God will hear your prayer. और आपके खिलाफ जो भी जगह में आप जो काम करते हो वो जगह में आपके खिलाफ काम करने, आपको खिलाफ बात करने वाले सबका मुंह परमेश्वर बंद करेंगे। And if at all in your workplace there are people who speak or abuse against you, God will shut their mouths. तो क्या करना पड़ेगा? नंबर 2 क्या करना पड़ेगा? 20 चैप्टर 29 वर्स 13 13 अध्याय में, And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Verse 13. Chapter 29 verse 13. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको जो प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए समझ लीजिए, सबसे पहले आपको पूरे मन से, पूरा हृदय के साथ परमेश्वर को ढूंढना है। And in order for you to be delivered, first of all, seek the Lord with all your heart. वो जो लिख कर रखा है, अगर तुम सचमुच पूरा मन के साथ परमेश्वर को तुम ढूंढेंगे तो परमेश्वर तुम्हें दर्शन करेंगे। And he says that when you seek him with all your heart, you will find him. और अगर आपको जो प्रार्थना को उत्तर देंगे, He will answer you. क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो वादा किया तो वो पूरा करके देने वाला Our God is परमेश्वर a है। God of truth, and if he has promised, surely he will bring it to pass. तो उसने वापस वो दिखा रहा है, देख लीजिए, वापस यही दिखा रहा है, तुम जो बंधी हुई, तुम्हारे जो प्रॉब्लम से, तुम्हारा हर जगह से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर की योजना है। आने के समय में वचन 14 में वापस लिखा है, And we see that God surely has an answer for all your bondages and captivity, and we read verse 14. I will be found by you, says the Lord, and I will bring you from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते। Chapter 29 verse 14. जो जगह में आपका परिवार जो चला गया है, वो सबको वापस परमेश्वर लेके आएगा। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। आपने कुछ प्रॉब्लम में फंसने के बाद परमेश्वर तुमको योजना दे रहा है, सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढो। And God is giving you the solution that after you are in captivity, what you must do is seek him. अगर आप मसीह हो और कोई दूसरा कोई जाति हो, Whether you are a believer or an unbeliever, लेकिन परमेश्वर तुम सबके ऊपर प्रेम करने वाला God है। loves each and every one of you. हम सबके लिए परमेश्वर ने क्रूस उठाया है। And Jesus died on the cross for each and every one of हम us. सब ये दुनिया में ऐसा कोई है नहीं है,
पाप नहीं किया है, सब जन पाप किया And है। nobody can ever say in the whole world that they have never sinned. कुछ न कुछ तरीके से पाप किया होंगे, In some way or the other, they falter. कुछ कार्य से पाप किया होंगे, In some way or the other, कुछ सोचने से पाप किया होंगे, maybe in their ways, in their thoughts, कुछ काम करके कुछ गलत किया, पाप maybe किया in होंगे। their doings. तो लेकिन परमेश्वर जो कहता है, अगर तुम्हारे पापों को छोड़ के तुम सच्चाई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएंगे। When you let go of all your old sins and you believe in the true God, surely He will deliver you. आपको याद रखना पड़ेगा, आपका पापों को कौन आपको क्षमा कर सकता है? You must know who is the one who can forgive you of your transgressions. अब समझ लीजिए, पापों को क्षमा करने के लिए सिर्फ यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। And the blood of Jesus alone has the power to cleanse you from your sin. और इसीलिए वो पृथ्वी में आए और अपने लहू के हम सबको, आपको और हमको उसने बचा लिया है। And He came into this world, He shed His blood for us, and He saved each and every one of और वो us. जीवित परमेश्वर है, वो मरने के बाद तीसरे दिन जी उठाया और वापस आने वाला है, वो आपको और हमको लेके जाने के लिए। And He's a living God. On the third day He rose again, and He's coming back to take you and तो me. इसी कारण उन वचन के ऊपर आपको विश्वास रहने से Therefore, keep your faith upon the word of God. और आपके जीवन में जो भी समस्या है उसमें से परमेश्वर छुड़ाएंगे। And when you keep your faith upon the word of God, He will deliver you from all your problems. उनको पता है, मतलब जो आपने गलती किया है, तकलीफ हो गया है, पाप भी हो गया है, आपको उसमें से छुड़ाने के लिए परमेश्वर वापस आपको बुला रहा है। Understand that He knows that you have been stuck in some kind of a captivity because of your own sin maybe, but He is willing to deliver you from there. अगर आप सचमुच परमेश्वर का बस सरेंडर हो गए तो परमेश्वर, यीशु हमने गलती किया, मैं पापी है, मुझे क्षमा करो, मैं अनंतकाल जीवन पाना चाहता हूँ, आपका बेटा बनना चाहता हूँ, आपका बेटी बनना चाहता हूँ करके अगर विश्वास करेंगे तो आज परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएंगे। Even today, if you believe in the Lord Jesus Christ in truth and you tell Him, Lord, I want to be your son and daughter, even God will accept you तो today. आप अटका, मतलब दूसरे जगह बस गया तो क्या करना है? वचन में जो लिखा है, यिर्मयाह chapter 30 verse 8, 8वां वचन में जो लिखा है, For it shall come to pass in that day, says the Lord of hosts, that I will break his yoke from your neck and will burst your bonds. Foreigners shall no more enslave them. सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा। मतलब तुम्हारे ऊपर जो जुआ रखा है, तुम्हारे कारण जो भी परमेश्वर दंड दिया है उसी को परमेश्वर तोड़ देंगे। And he's saying that all that yoke that is upon your neck, all that is binding you, God will break. और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे। ये जो वचन में जो लिखा है, जो वर्ष 8 में जो लिखा है, तो तुम्हारे गर्दन में जो रस्सी जो बांधा है उसको तोड़ के He says he will break the yoke from your neck and burst your bonds. और दूसरा कोई भी तुमको गुलामी नहीं बनाएंगे, तुम दूसरे के स्लेव नहीं बनाएंगे। You will no longer be a slave to man. मतलब जो दूसरा कोई शैतान का भी तुम स्लेव नहीं बन सकता And you है, will no longer be in bondage or under slavery under Satan and his schemes. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आने वाला है, Why? Because the Lord Himself will work in जो your तुम्हारे life. जीवन में आशीष करने वाला है He will bless you. और तुम्हारा प्रार्थना सुनने वाला He है। will hear your prayer. अगर तुम अपने जीवन में सचमुच तुम बदल गए तो वो देख के स्वयं परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। And when you pray and you transform, surely God Himself will involve in your life and change you. तुम यही तो जो बता रहा है, तुम्हारे जीवन में जो भी अभी प्रॉब्लम आज के दिन जो फेस हो रहा है, हर प्रॉब्लम को परमेश्वर छुड़ाएंगे। And believe it as the Lord tells us that whatever problem or bondage you are in, God will break it. आपको विश्वास कर लेना पड़ेगा। And He will deliver you and you believe it. और वो जो वापस तुम्हारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स जो आ गया है, पहले जो किस तरह अच्छी तरह हो गया था उसी तरह से परमेश्वर वापस And करेंगे। even the Lord will deliver you and bless you just like your former days. और chapter 31 verse 4, Again I will build you, and you shall be rebuilt, O Virgin of Israel. You shall again be adorned with your tambourines, and shall go forth in the dances of those who rejoice. Hallelujah. Chapter 31 verse 4, हे इज़राइली तुम्हारी कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। हालेलुया।
वापस परमेश्वर तुम्हें बांधेंगे, and the Lord will rebuild you. तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगे। He will bring back rejoicing and dancing. तुम जो खुशी के साथ जो परमेश्वर की जो आनंद जो करता है, परमेश्वर की जो सेवा करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, उनके साथ में तुम जोड़ेंगे। And God will connect you to people who rejoice in the Lord, who fellowship in the Lord. और जो व्यक्ति रोके रोके बैठा है, अगर तुम परमेश्वर के पास आने के समय में परमेश्वर किस तरफ जो आशीष करने वाला है, And those who are in tears, in bondages, they are crying. In what way can God deliver you? The Lord will speak. Verse 9. They shall come with weeping, and with supplications I will lead them. I will cause them to walk by the rivers of waters in a straight way in which they shall not stumble. For I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn. वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे। जो बहुत जन रोके रोके बैठा है, मुझे मेरे जीवन में इस तरह समस्या में मैं कैसे बाहर आ जाऊं, मुझे आने के लिए कुछ मौका नहीं है, मुझे कौन छोड़ देंगे करके जो रोते रहते जो लोग बैठा है ना। And there are a lot of people who are seated weeping, who are weeping so much, thinking that who will deliver me, who will save me from my troubles. और जो तुम आज परमेश्वर सामने तुम रोएंगे तो परमेश्वर तुम्हें सही जगह में लेके आएंगे। And even today, as you cry in God's presence, God will deliver you and bring you to your broad वही place. परमेश्वर तुम्हारे से आज वादा करता है। And that's God's promise and word to you. जो तुम बंदीगृह में जो फंसा हुआ है तुम्हें छुड़ाएंगे। All those who are in bondage and captivity, God will deliver you. तुम्हारे जीवन में जो जो समस्या आ गया है सब समस्या दूर जाएंगे। And all the problems that you're facing, God will drive it away. उसको क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में जो भी श्राप आया वो श्राप को परमेश्वर यीशु उठा दिया है। And all the curses upon your life also, Jesus took it upon himself. वो जो लिखा है पौलुस ने लिखा, गलातियों में लिखा है, गलातियों चैप्टर 3 वर्स 13 में जो लिखा है 13 में, जो आपके जीवन में जो श्राप हो गया तो वो श्राप को यीशु उठा दिया लिखा है। गलातियों चैप्टर 3 वर्स 13। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who hangs on a tree." मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जो लिखा है, जो आपका श्राप को यीशु ने उठा दिया। And the word of God says that your curses were taken up by Jesus. आपको आजादी दे दिया He है। has already set you free. आप विश्वास करो। Believe it. आपको जो भी बोझ है, आपको जो भी सब कुछ यीशु के ऊपर रख दो। You cast all your cares and your burdens upon the Lord Jesus. बार-बार उसका बारे में तुम सोचो मत। And after giving it to Him, don't keep thinking and thinking about तुम it. बार-बार उसके ऊपर वही सोच के वापस तुम बीमारी हो जाते And many हैं। a times thinking and worrying about the same things, we become sick and weak. विश्वास करो यीशु के ऊपर और तुमने बोला मेरा बोझ परमेश्वर ने उठा दिया करके रिलैक्स हो जाओ। And after giving your burdens to the Lord, believe that you have given it to Him and He will take care. आपको पहले महीने बहुत दिन का पहले आपको जो बताया था आप याद रहेंगे। एक व्यक्ति क्या कर रहा था, सड़कों पर बहुत सामान लेके चलता रहा था। There was a man who was walking with a big burden on his head. और वो काफी लंबा जा रहा था। And he was traveling with a lot of luggage on his head. काफी थका हुआ था। He was very much tired. लेकिन उसी समय में दूसरे एक व्यक्ति ने आया, एक गाड़ी लेके आया। वो देख रहा था, अरे जो व्यक्ति काफी दूर से देख रहा है, मतलब दूर से आ रहा है, बहुत वजन लेके जा रहा है, चलो इनको मदद करें। And there was this man who was passing by on his vehicle, and he saw that this man on the road was having so much luggage and he was so tired, and as he was walking, जो उसने क्या किया, गाड़ी में जाके, ए भाई तुम आ जाओ, मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में उसको जगह दे दिया है। and so he told that man that brother, you come into my vehicle and you can be seated here. वो उसमें गाड़ी में पीछे बैठ के मतलब जा रहा था। And as that man climbed in the back of the vehicle, and the vehicle moved on. जो जगह गाड़ी रुकाया, पीछे मुड़ के देख रहा है। And after that destination was reached, when the driver turned back, वो जो उसने जो बोझ के जो ऊपर जो रखा है वो नीचे रखा नहीं है, मतलब उसको ऊपर ही रख के बैठा है गाड़ी and the में। man who was seated behind, what he was doing is he had luggage still on his head, but he was seated in that truck.
इस तरह से आज वो जन जो अनजाने में बुद्धि के बिना इस तरह फंस जाता है। And a lot of people unknowingly and without knowledge, what they do is they are stuck with such burdens. तो उसने जगह दिया तो उनसे क्या करना चाहिए? अपने बोझ को उतर के नीचे लेके फ्री होना चाहिए, आधा जो होना That चाहिए। man, the driver gave him the provision to be seated. So what this man should have done is he should have removed his luggage from the head and kept it aside and relaxed. वो बोझ के साथ में पीछे बैठा है। But what he is doing is still carrying that luggage on his head. आज इस तरह तुम भी हो सकता है। And maybe even today you are doing the same. परमेश्वर तुम्हें पुकारता है। Today God is calling out to you, my मेरे son, my बेटे मेरे daughter. पास आ जाओ। You come to me. मैं तुम्हें विश्राम देंगे। I will give you rest. क्योंकि वो सचमुच परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएंगे। And he is a God who delivers. अगर तुम्हें छुड़ाना चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? क्या तुम्हारे लिए चाहिए? And when you need deliverance, what you must do is तुम्हारे हृदय को परमेश्वर को देना है। you give your heart to the Lord. हम एसेकिएल चैप्टर 11 वर्स 16 में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जीवन में जो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? या एसेकिएल चैप्टर 11 वर्स 16। परंतु तुम उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों से बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया है। तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। Therefore say, thus says the Lord God, although I have cast them far off among the Gentiles, and although I have scattered them among the countries, yet I shall be a little sanctuary for them in the countries where they have gone. और नेक्स्ट वचन, Therefore say, thus says the Lord God, I will gather you from the peoples, assemble you from the countries where you have been scattered, and I will give the land of Israel. इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इज़राइल की भूमि दूंगा। तितर बितर मतलब आपका जीवन मतलब पूरा खराब हो गया, समझ And लीजिए। we see that maybe you're scattered, broken in pieces, आपका जीवन खत्म हो गया, समझ and you लीजिए। feel everything is actually finished. आपका फैमिली लाइफ ही बिगड़ गया, समझ And you लीजिए। feel my family life is broken. आपका जो दूसरा जो जॉब है आप कंप्लीट जगह में बिगड़ने दो। And maybe even your past job, you were literally shattered there. लेकिन परमेश्वर जगह से तुम्हें वापस लेके आएंगे। But God has promised that He will bring you back. तो क्या करना है? वर्स 18। And they will go there and they will take away all the detestable things and all its abominations from there. वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले जो घृणित काम मतलब जो अनवांटेड थिंग, जो परमेश्वर को नापसंद काम, हर चीज को पहले बाहर निकालना है। And what the Lord wants you to do is first cast away, take away, uproot everything that's detestable and an abomination to the Lord. आपको याद होंगे रेवलेशन में जो यही जो लिखा है, जो पवित्र बुक में, जीवन के बुक में जो नाम जो लिखा है उसका बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। And the word of God says that all those whose names are not in the book of life, they cannot enter the kingdom of God. तो उसमें जो लिखा है, जो परमेश्वर का नापसंद काम करने वाला है, And all those whose names are not written are those people who are an abomination to the Lord. वो लोट के जीवन में किस तरह जो काम कर रहा था वो देश में, And we see that even during the time of Lot, the land of Sodom and Gomorrah, how the people were behaving. तो यीशु मसीह ने यही बता रहा, मैं वापस आने के समय में इस तरफ जो लोट के समय में जो हो गया था उस तरफ जो वापस होने वाला है। And even Jesus said that when I'm coming back again, the times just like the times of Lot, the sins of Lot, all those things will be happening again. आपको याद रहेंगे पिछले काफी हफ्ते के पहले लेविटिकस में जो परमेश्वर ने काफी चीज में लिखा है, तुमको तुम्हारा किसके साथ में संबंधी करना है, किसके साथ शादी करना है, किस तरह पवित्र जीवन मिटाना, अच्छी तरह आपको बताया। And the Lord also ministered to us from the book of Leviticus that how you must be in fellowship, how you must get married, in what connections you must be. अगर आपने सुखा नहीं तो वापस पढ़ेंगे। You take time to read it out later on if you have not read it before. जो 17 से लेके 21 लेविटिकस 17 से लेके 21 पूरा बार-बार पढ़े, आपको परमेश्वर आपका बात And करेंगे। read from
chapter 17 to 21 later on the book of तो जब Leviticus. आपका जीवन पवित्र होने के शुरू किया तो क्या होता है? And when you start giving up your old life and you start living a holy life, how the Lord works is, ये सुनिएगा, अगर आपके जीवन में पवित्र जीवन बिताने के लिए आपको पहले बदलना होगा। in order to live a holy life, first of all, there must be a change and a तो transformation. उसमें पहले क्या बता, मेरा आवाज सुनो, मतलब परमेश्वर का वचन सुनना है The first thing is hear the word of God और अपने हृदय में रखना है। and take it and register it in your तो heart. अगर आपको हृदय में रखना है तो आपके हृदय में पत्थर नहीं होना चाहिए। And हृदय when you want the word of God to be like registered upon your heart, God does not want your heart to be a heart of stone. समझ लीजिए, जो अगर आपको हृदय में पत्थर बन गया तो क्या आप When your heart becomes stony, then it never changes and it cannot accept anything. जो बहुत जन मीठा मीठा बात करेंगे लेकिन उनका हृदय पत्थर होने के बाद वो बदलता नहीं है। And we see that there are a lot of people who may speak sweetly, but their hearts are like stone. किसको पनिशमेंट दे रहे तो वो दंड देने के बाद ही वो सोएगा, उसके बाद ही उसको And they're so hard-hearted in such a way that till they take revenge or till they punish the other, they cannot sleep. जो कोई भी संभव कोई दिन में बात किया होंगे वही बात को ऊपर याद रख के पनिशमेंट मतलब बदला लेने के लिए मौका देखते रहते हैं। And if at all there is any incident that happened, day and night they think about it, and till they take revenge, they do not have rest. दूसरे की क्षमा करने के लिए मन नहीं होता है। Their heart is not able to forgive another. तो दूसरे के ऊपर प्रेम करने की मन नहीं They होता are not है। able to love one another. जो परमेश्वर के बारे में सोचने की मन नहीं होता And है। their heart never considers God जो Himself. परमेश्वर का प्रेम के बारे में सोचने की मन नहीं होता And है। their mind and their heart is not willing to think about जो God. परमेश्वर के खिलाफ काम करने के लिए मन होता है। Because why they are already bent upon doing यही things है against हृदय में God. जो पत्थर का जो हृदय बता रहा And है। such a stony heart is the one that's bent against God. अगर वो पत्थर का हृदय निकालने चाहिए तो परमेश्वर निकाल सकता है। And only God alone can remove that heart of stone ये away जो from लिखा you. है वर्ष 19 में जो लिखा है, Then I will give them one heart, and I will put a new spirit within them, and take the stony heart out of their flesh, and give them a heart of flesh. मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर पास आने के समय में जो आपका जीवन बदलने के कारण यही है। And the reason why and how you change when you come to the Lord Jesus is, this is the way how God does in your क्या life. करेंगे? सबसे पहले अपने पत्थर का जो जैसे जो हृदय है उसके निकाल के मांस जैसे हृदय मतलब परमेश्वर का हृदय तुमको देंगे। And we see that He gives you a new heart. He removes that heart of stone out of your life. वो And कैसा gives you है? a heart of flesh. परमेश्वर का पवित्र आत्मा को देख के आपको पत्थर के निकाल देंगे। He says that I will give you one heart and give you the new, put a new spirit within you and take that heart of stone away. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब ये देख लीजिए, तब आपको जीवन बदलेंगे। And when He works in your life, you change. परमेश्वर आशीष देंगे। He starts blessing हम you. लास्ट वचन में देख लेंगे, इस तरफ जो फंस गया तो मतलब जो बंदीगृह में बंदी हुए जातियों कोई भी हो, लेकिन आज अगर तुम परमेश्वर के वचन में तुम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर किस तरफ आशीष से बदलने वाला है हम पढ़ेंगे। And we read a last verse. Even if you are feeling that you are in some kind of captivity or bondage, the Lord can deliver you. आमीन। Amen. अगर सचमुच है तो ये वचन बराबर सुनिएगा। ये जो आयुब का कहानी में लिखा रहा है, आयुब 42 वचन अध्याय वर्ष 10 लिखेंगे। जॉब चैप्टर 42 वर्ष 10। And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। Hallelujah. ये जो कहानी आपको सबको पता है, And we all know about the story of Job. उसके जीवन में काफी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अभी क्या किया, परमेश्वर ने डबल पोर्शन डबल ब्लेसिंग उनको दे दिया है। He had a lot of suffering that he went through, but the Lord blessed him with double of everything. और उनका जो फ्रेंड है, तीनों जो फ्रेंड को भी परमेश्वर देने के कारण परमेश्वर जो कहा था वो उन्होंने आगे पालन किया है। And वो we वचन में see लिखा है, that- उसको पहले वचन में लिखा We है। see that the three friends also, the Lord was not pleased with them. He was about to destroy them, but God made him obey
God. हालेलुया। जो क्योंकि जो अय्यूब को पता है परमेश्वर कितनी महान परमेश्वर है। And we see that Job prayed for his friends and Job knew that his God is a very big God. हालेलुया। Hallelujah. Chapter 42 verse 2. I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आमीन। Amen. परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। Our God can do everything. आपको बगल में जो बैठा है उनको बोलो मेरा परमेश्वर सब कुछ तुम्हारे जीवन में कर सकता Tell है। the person seated next to you that my God can do everything. और तुम्हारे लिए जो क्या क्या चाहिए परमेश्वर तुम्हारे लिए करके देंगे। And whatever you need, you desire, God will give it and do it for you. एक बार विश्वास के साथ उससे से मिलके बात करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करके देंगे। God will do everything for you. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर तुम्हारे से जो बात किया विश्वास के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। And my beloved, even today God has spoken to us with faith we will pray. हम साथ में प्रार्थना एक मन होके विश्वास के साथ मेरे साथ आप प्रार्थना में जोड़ाइए। And with faith you get along with one accord and let's आज pray. तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। And even today the Lord will do a mighty work in थैंक your यू life. जीसस। पिता परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। Father God, we thank you at this time. प्रभु आपको जो वचन हमें आशीष देता है। Lord, your word is a blessing for us. आपने जो बताया है अभी अय्यूब ने कहा जो सब कुछ परमेश्वर तुम जो सोचा वो करके कर सकता है। And just as Job has testified saying that you will do all things that are in your purpose. आज जो वचन जो सुनने वाले जो देखने वाले भाई बहन बच्चे सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। Lord, even today all those who are hearing our word, the brothers, the sisters and the children, we pray. प्रभु बहुत जन बंदी के अंदर चला गया है। Lord, many people feel like they are in some kind of a bondage today. बहुत जरा कारण से प्रभु फंस गया प्रभु। And Lord, due to loads of reasons, they are in captivity. कौन छुड़ाएंगे प्रभु? Who can deliver them, Father? प्रभु अपने ताकत से कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। Lord, man by his own strength can do nothing. प्रभु जो देखा है जो रो रहा है सबका आंसू को पोंछ लीजिए प्रभु। Lord, we pray for all those who are in tears, who are weeping. We pray you will wipe away their tears. जो आपने जो एसेकिएल में जो अभी जो बात किया है जो रोके जो आता है उनको प्रभु आप आशीष से बदलने वाले हैं करके। And just as we read in the book of Ezekiel, all those who are mourning and weeping, you said that you will turn it into joy and dancing. जो यिर्मयाह में आपने जो अच्छी तरह लिखा है जो फंसा हुआ है जो बंदी हो गया है उसको कैसे छुड़ाने के लिए आपने मार्ग दिखाया प्रभु। Lord, in the book of Jeremiah we read that all those who are already in captivity, you are the one who makes the way and delivers them. आपका वचन को पर विश्वास कर रहा है। Lord, we believe in your word. आपका बस आ रहा है प्रभु। Lord, your people have come to you. जो पत्थर जैसे जो हृदय को निकाल के मार जैसे प्रभु आपका हृदय को दीजिए। Lord, we pray that you will take away every stony heart and give them a heart of flesh, a heart like you. जो आपका पवित्र आत्मा से सबको भर लीजिए प्रभु। Father, we pray you, Lord, pour out your spirit upon each and सब every one. कुछ छू लीजिए प्रभु। We pray you touch each and every नया one. आशीष दीजिए प्रभु। Give us a new blessing this जो day. चंगाई के लिए जो मांग रहा है प्रभु आज के दिन से नया चंगाई होने दो Lord, यीशु all मसीह those के who are नाम asking से। for a healing in the name of Jesus, let there be a healing granted. आज से होने दो प्रभु। Lord, from today and this day, प्रभु आपको जो वचन के द्वारा आज आपने जो बात किया है प्रभु वो आज से शुरू होने दो प्रभु। Lord, whatever you have ministered to us through your word, we pray that it will begin from today. सबके जीवन में आशीष आने दो। Let the blessings flow into everybody's आप जो life. आने वाला है उसकी सबको तैयारी करने की मदद कर Lord, we लीजिए। pray for the blessings that is yet to come, that people will be prepared to receive it. जो विश्वास में और बढ़ा लीजिए प्रभु। We pray you will increase everybody in faith. कोई भी पीछे मुड़ के नहीं जाना है। Let no one turn back empty, Father. जो कोई भी प्रभु जो वचन में जो लिखा है जो यिर्मयाह में जो लिखा है कोई झूठे भविष्यवक्ता ये सबको प्रभु बदलना नहीं चाहिए प्रभु। Lord, we pray that there should be no false prophets going around, Lord, cheating your people. जो आप संभाल लीजिए। You take care of your आप people. ज्ञान दीजिए बुद्धि दीजिए सामर्थ दीजिए प्रभु। Give your people, Lord Father, the wisdom and the knowledge and the strength that they need. प्रभु आज जो फेसबुक में जो व्हाट्सएप में जो प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट जो किया सबको पर प्रभु याद कर लीजिए प्रभु। Lord, we pray for all those who have sent us their prayer requests. We pray you'll remember each and every one of them. आज प्रभु नया जीवन आने दो।
We pray that new life will be granted नया to them. आशीष आने दो, Let a new blessing be नया granted to चंगाई them. होने दो। Let a new healing be granted to जो them. प्रभु जो हॉस्पिटल में जो है, कोई घर पे बीमारी में जो बैठा है, जो आज जो देख रहा है, सबके जीवन में नया जीवन आने दो, नया चमत्कार होने Lord, दो। all those who are sick in hospitals and in their beds, in their house, we pray that there a new healing will be granted today. जो ऑर्गन, जो किडनी, जो हार्ट, जो प्रॉब्लम जो हो गया है, नया ऑर्गन दीजिए प्रभु। Lord, we pray for all those who have internal problems. We pray you will grant them a new heart, new organs, Father. आप नया काम करने वाला है, Because you're a God who can do all things नया new. चंगाई करने वाला है। You're a God who does new हम healings. विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देते हैं With प्रभु। faith, we thank you, Father. जो हमने प्रार्थना जो किया आपने दे दिया, इसके लिए धन्यवाद देते And thank you for answering our prayer that you have given us what we have asked of आज से you. हम सबके जीवन में जो भी बोझ है आपने उठा लिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं Lord, प्रभु। even today you have taken away all our burdens and we want to thank you. जो हम अभी आज से आजादी हो गया आपके नाम से। Thank you that we have been delivered and set free from today. यस लॉर्ड, और एक बार आपको धन्यवाद देता, आपने हम सबको ये जो बंदी के दल से, जो श्राप से, जो पापों से छुड़ा दिया, इसलिए और एक बार आपको धन्यवाद देते And हैं even प्रभु। again, we thank you once again that you are the one who has delivered us from all our bondages. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, In the name of Jesus we pray. आमीन। Amen. हालेलुया। Amen. मेरे Hallelujah. प्रियो, आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में नया कार्य करने शुरू कर दिया है। And my beloved, even today the Lord has begun a mighty work in your life. आपके जीवन में विश्वास के साथ आगे बढ़ा लीजिए, With faith you move ahead. पीछे मुड़ के मत जाओ, Do not turn back. पिछले जीवन में मत जाओ। Don't go back to your old life. मतलब पिछले जीवन में पीछे जाने से आपको नष्ट होने वाला है। And if you turn back and go and repeat your old life again, you are the one in the path of destruction. बार यीशु मसीह के पास माफी मांग नहीं सकता है। Don't come again and again to ask forgiveness. अगर परमेश्वर जो कहता है, अगर सचमुच अपने पापों को छोड़ के तुम आगे, तो परमेश्वर तुम्हें गले लगाने वाला है। And if really you let go and you repent and throw away your old life, God will accept you. He will help you. आमीन। Amen. परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। May the Lord bless you all. Hallelujah. आशीष की प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, तो मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ तू रहता, मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता मुझे बुराई से ऐसे बचा कि रखता मैं इससे पीड़ित न रहूं। मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। आशीष देंगे। श्रापों से, पापों से बचाने वाला है, आनंद का जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य का और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन। आमीन। हालेलुया। 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 परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज भी हम धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर को ये मौका जो उन्होंने दिया कि हम कलीसिया होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और सुंदर वचन पासवान हमारे बीच में बांटे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हफ्ते की जो मीटिंग जूम पे होती है, कृपया करके सबसे निवेदन है कि आप उसमें जुड़ते रहिए और परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और हमारे फेसबुक जो पेज है द हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च और यूट्यूब चैनल जो है द हार्ट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज, उसको सब्सक्राइब और लाइक करके रखिए ताकि जो भी मिनिस्ट्री के अपडेट्स हैं आपको मिलते रहे। आमीन। जुड़ते रहिए, फेलोशिप में रहिए। परमेश्वर श्योरली आपके जीवन में महान कार्य करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ ब्लेस्ड संडे टुडे।